Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। So we read from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, श्लोक नंबर 23। फैन थोड़ा कम कर सकते हैं इसको। ओके गुड। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। कोई रिसाइट करेंगे? 9.23। येऽपि अन्य देवता भक्त्या श्रद्धयान्विता ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। थैंक यू। यस, वन मोर पढ़िए। येऽपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। थैंक यू। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ये those who api also anya of other devata gods bhaktaha devotees yajante worship shraddhayanvita with faith they api also mam me eva only Kaunteya O son of Kunti Yajanti they worship avidipurvakam in wrong way. Translation: those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Purport: persons who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent. Although such worship is offered to me indirectly, Krishna says. For example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officers and directors of the Lord. The officers and directors are engaged as representatives of the government, and to offer some bribe to the officers and directors is illegal. This is stated here as avidhi purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. Okay? तो हम मंगलाचरण करेंगे. इसमें आप लोगों के पास ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य इसके इंट्रोडक्शन के पहले पेज पे होगा. आप थोड़ा आगे आ जाओ प्रभु. इधर आ जाओ. थोड़ा आगे आ जाए सब लोग. मिल गया. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्णा सेइंग अबाउट द डेमिगॉड वर्शिप, देवताओं की वर्शिप के बारे में भगवान यहाँ पर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं बेसिकली वो एक्चुअली मेरी भक्ति कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो भक्ति है कैसी है? अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वकम भक्ति है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है है ना। देवताओं की भक्ति करते हैं तो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करते हैं। कैसे देवताओं की भक्ति भगवान की भक्ति करना है या फिर अविधि पूर्वक है मैं, तो फिर ये बेसिकली देवताओं का क्यों, क्या रोल है, क्यों उनके वर्शिप के मेथड्स बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द देवतास, देवता कौन होते हैं बेसिकली, है ना। तो जैसे भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हैं। थोड़ा आप लोग आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट हम बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली हम ओपन एंडेड डिस्कशन होगा इसमें, बाद में विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। फैन बंद कर सकते हो, मैंगो को दिक्कत होगा। तो फिर स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन उठता है कि देवताओं की वर्शिप की जाती है, देवता कौन होते हैं, देवता को कौन लोग अप्रोच करते हैं, क्यों ये सिस्टम बनाया गया है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं यज्ञों के बारे में, है ना। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब प्रजापति की क्रिएट किए तो प्रजापति के साथ में यज्ञों की विधि को भी क्रिएट किया, है ना। और ये जो जीवात्मा है बेसिकली ये यज्ञ करके क्या रह सकते हैं? संतुष्ट हो सकते हैं, परस्परम, है ना। देवता और जीवात्मा आपस में संतुष्ट हो सकते हैं कैसे? यज्ञ करके। ये जो देवता हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, दे आर द डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, दे आर द डिपार्टमेंट इंचार्ज, डिपार्टमेंट हेड्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट इन यूनिवर्सल गवर्नमेंट। जैसे हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसमें भी क्या है? मिनिस्ट्री, डायरेक्टर्स हैं, है ना। तो उसको हेड, उसके जो हेड हैं वो कौन है? देवता हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स के। अल्टीमेटली सुप्रीम हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी, गॉड हेड, है ना। There might be so many God, but there is one God head, है ना। That is and that God head is person, इसलिए सुप्रीम, that person सुप्रीम पर्सन, है ना। तो ये अलग अलग देवता हैं बेसिकली, जैसे इंद्र देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, है ना, अग्नि देवता, पृथ्वी, है ना। तो ये सब क्या हैं? ये अलग अलग क्या देवता हैं। इनके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, भगवान के द्वारा कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं इनको, ताकि ये क्या कर सकें? ये हम लोग को वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन डेमिगॉड्स।
इन देवताओं के ऊपर पूरी तरह से हम निर्भर हैं। हम इनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारा एग्जिस्टेंस इनके ऊपर निर्भर है। कैसे? वर्षा के लिए इंद्र पर निर्भर हैं, वर्षा नहीं। सांस लेने के लिए वायु देवता है ना। मान लो वायु देवता किसी दिन कैजुअली ले लें हैं तो क्या होगा? हमारी कैजुअलिटी हो जाएगी। गर्मी देने के लिए, सब कुछ देने के लिए सूर्य देवता है। कैसे? सूर्य देवता सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हमें। हाथ खड़ा करके इस को। पहले तो उनसे ही भोजन बना पाते हैं प्लांट्स, फिर हम वो लेते हैं। हाँ। और जो नॉनवेज खाते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो जानवर खाना खाते हैं, फिर मतलब फूड सप्लाई तो कम्प्लीटली उनसे ही है। और वैसे भी अगर वो नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर के। हाँ, तो सूर्य के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, हर देवताओं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, है ना। सूर्य देवता के ऊपर कैसे? जैसे बता रहे हैं प्रभु कि ना, जब प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्रसादम नहीं बनेगा ऊपर, है ना। प्रसादम नहीं होगा तो फिर क्लास किस काम की है ना। तो प्रसादम नहीं होगा, फिर सनलाइट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? एयर होगा। एयर बहेगा। एयर कैसे बहता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहता है। एयर भी नहीं बहेगा, ठीक है, एयर नहीं बहेगा, लेकिन लैपटॉप तो यूज़ कर लेंगे ना, हैं? तब भी मतलब सन की जो फोटोन में जो एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करे फोटोसिंथेसिस में। हाँ। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ टेम्परेचर ऑफ द सन। हाँ। न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सनस एनर्जी आल्सो इन अ डिफरेंट वे मैनिफेस्टेशन। कोई भी एनर्जी लो, जैसे हाइड्रो एनर्जी हुआ, हाइड्रो एनर्जी पूरा किससे चलता है? सन से चलता है। वायु टर्बाइन्स होती हैं वो उससे घूमती हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल है वो भी सन की वजह से। तो सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, हमारी आंखों की शक्ति नहीं है। सन अपना लाइट बंद कर लेता है तो हमारी आंखें होती हैं लेकिन देख नहीं पाते। आप कहोगे तो हम ट्यूबलाइट जला लेंगे, ट्यूबलाइट कहाँ से आ रही है? सन से ही तो आ रही है। तो हम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर प्राइम वीडियोस देखते हैं किसकी कृपा से? सूर्य देवता की कृपा से। खाना खा पाते हैं सूर्य देवता की कृपा से। बहुत कुछ देखो, हम पूरी तरह से निर्भर हैं। वायु देवता के ऊपर निर्भर हैं, सूर्य देवता के ऊपर, चंद्र, सारे देवताओं के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना। लोग फिर भी क्या है, हम इतनी पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं फिर भी क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हम किसी को मानते नहीं है, किसी देवता भगवान को नहीं मानते, है ना। सो दिस इज रास्कलडम बेसिकली, है ना। कैसे? कोई मतलब वे कंप्लीटली डिपेंडेंट। अब कोई कह रहा था कल, कुछ कह रहे थे हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा उसमें क्या है ना, हम तो अपनी बॉडी के साथ में गलत काम कर रहे हैं लेकिन भैया वो बॉडी आपकी नहीं है, आपको बॉडी दी हुई है, आप समझ रहे हो। कंप्लीटली आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, आप उस फैसिलिटी को तोड़ फोड़ नहीं। आपको कोई कार दी गई, फैसिलिटी दी गई, आपको मेरी कार है मैं तोड़ूंगा, दी हुई कार है फॉर सम पर्पज़, है ना। इसी तरीके से हमें सारी जो चीज़ हैं बेसिकली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं देवताओं के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि ये यज्ञ का सिस्टम बना, यज्ञ के सिस्टम से आप क्या करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवता प्रसन्न होंगे, वो आपको क्या करेंगे, भर भर के सप्लाई देंगे, आप इस लोक में खुशी रहोगे, इस जगत में खुश, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग, इसी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के भौतिक जगत में अलग तरीके के यज्ञ बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारे यज्ञ हैं, अलग अलग देवताओं की अलग तरीके से वर्शिप की जाती है। जैसे कुछ लोग सूर्य भगवान की वर्शिप करते हैं कि इसलिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। कुछ लोग हाँ शनिदेव की करते हैं, अलग अलग देवताओं की वर्शिप करते हैं, अलग अलग चीज़ों से बेसिकली प्राप्त करने के लिए, कोई डिज़ायर्स रखने के लिए, बेसिकली इस अपनी इच्छाओं को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग, देवताओं की वर्शिप करते हैं, है ना। जैसे सोमवार को कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं, है ना। और शिव जी के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि शिव जी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, कुछ मांगने ही जाते हैं हमसे, है ना। और मंगलवार को कहाँ जाते हैं, हनुमान जी के पास, मारुति के पास जाते हैं। ए मारुति गिव मी वन मारुति, है ना। और बुधवार खा लिया, बुधवार गणेश जी, ओके। और थर्सडे
पीर बाबा, हाँ। फ्राइडे को संतोषी माता, वो तो शास्त्रों में ही नहीं है। मंदिर भी है मतलब सो। हाँ, बाकी देवता तो शास्त्रों में है, लेकिन संतोषी माता का तो कहीं नाम नहीं आता शास्त्रों में बेसिकली, है ना। और सैटरडे को किसी को दें ना दें, शनिदेव को जरूर दान देंगे, घर पे आते हैं लोग लगाते हैं जिनको और ये इसका लगाते हैं। है ना। इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता है ना। इतने अथॉरिटीज है ना। और लोग क्या करते हैं, भगवान कहते हैं एक श्लोक में बोलते हैं, काम स्थित रहते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है ना। लोग काम, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग देवताओं को अप्रोच करते हैं। और बेसिकली भगवान कहते हैं वो हित ज्ञान, उनका ज्ञान क्या है, खत्म हो गया। दे आर फूल बेसिकली, आउट ऑफ फुलिशनेस टू फुलफिल देयर डिजायर दे अप्रोच डेमिगॉड्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड डिवोशन। वर्शिप इज फॉर getting something in return. Devotion is selfless, आपकी सेवा के लिए, या जीवन आपकी सेवा के लिए। It is तो अलग अलग डेमिगॉड्स है बेसिकली, दे आर लिविंग एंटिटीज बेसिकली। वो क्या है, एक जीवात्मा ही है, हम जैसे जीवात्मा है। आप कहें तो कमाल की बात है लेकिन किसी जीवात्मा के पुण्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या, जैसे कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र बनने का अधिकारी बन जाता है ना। इसीलिए देखते हैं कि कई बार कुछ महाराज हुए हैं, पीछे राजा हुए हैं, बहुत बड़े भक्त, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया। पृथु महाराज थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे, लेकिन 99 होते ही इंद्र क्या भेज देता था, अपना कुछ गड़बड़ कराने के लिए उनको घोड़ा चुरा लेता था, कुछ गड़बड़ कर देता था कि 100 उनके क्या नहीं होने चाहिए, ये अश्वमेध यज्ञ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी बन सकता है। ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, इंद्र भी पोस्ट है, ये सभी देवता एक पोस्ट है। हर मनवंतर में ये पोस्ट क्या है, इस पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति चेंज होते हैं। ऐसा नहीं इंद्र सनातन नहीं है कि सेम ही इंद्र रहता है। वो इंद्र बाद में इंद्रगोप भी बन सकता है, आप समझ रहे हो, कीड़ा भी बन सकता है इंद्र, है ना। कई बात होता है श्राप के कारण इंद्र को, है ना, सुअर का जन्म लेना पड़ा, है ना। तो दीज डेमिगॉड्स आर नॉट लाइक permanent position, they are like authorities in this world and these authorities are gaining power from Lord Krishna. भगवान से इनको शक्ति मिल रही है। भगवान कहते हैं, एक और श्लोक बोलते हैं, जैसे इसमें कह रहे हैं कि मेरी वर्शिप करते हैं, एक और श्लोक में कहते हैं देवताओं की जो वर्शिप करते हैं उनकी काम इच्छाओं को पूरी कौन करता है, अनडायरेक्टली मैं ही उनके काम इच्छाओं को पूरी करता हूँ। अल्टीमेटली सोर्स एक ही है, वहीं से सब कुछ आ रहा है ना। लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान देवताओं को माध्यम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो वर्शिप, देवताओं की वर्शिप क्यों करते हैं, कुछ इच्छाओं से करते हैं, कुछ भौतिक इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं लोग, देवताओं की वर्शिप करते हैं, है ना। और दूसरा, देवताओं की वर्शिप क्यों करते हैं, क्योंकि सब लोग एक सेल्फलेस सर्विस के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। ऑफकोर्स भगवान की वर्शिप किसी मोटिव से की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, हमारे मत्स्य पुराण में आता है, वर्णन आता है, हमारी कितनी पुराण है, 18 हैं? 18 कितनी पुराण है तो इन पे? 18 तो 18 पुराण है। हाँ, तो मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि जो 18 पुराण हैं ये अलग अलग गुणों के हिसाब से हैं। कुछ सतोगुण की पुराण है ना, कुछ रजोगुण की पुराण है, रजोगुण में जिन्हें वर्शिप होती है, कुछ तमोगुण है ना। सतोगुण की वर्शिप अलग होती है, रजोगुण की वर्शिप होती है पोस्ट प्रेस्टेज पाने के लिए, तमोगुण की वर्शिप होती है कोई व्यक्ति मान लो घोर अंधकार में होता है ना। कुछ लोग होते हैं अपना मांस काट के चढ़ाते हैं, मदिरा, है ना। तमोगुण की वर्शिप होती है काली माता की सेवा करते हैं, 5 माह होते हैं उसमें, मदिरा, मत्स्य, मांस, मैथुन, एक और रह गया, ग्रीन जो है ना, फूड मूरा शराब पता नहीं क्या होता है मूरा, है ना। एनीवे, तो ये जो वर्शिप है तमोगुण की वर्शिप है ना। तमोगुण के लोग, ये बेसिकली हमारे जो शास्त्र हैं ये ऑल एक्सेप्टिंग है, किसी को रिजेक्टिंग है। हर व्यक्ति, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति, उसकी चेतना 3 गुणों में होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी चेतना को एलिवेट कर सकता है। तो
तो ये देवताओं का जो सिस्टम है, अपने गुण के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम उनको वर्शिप कर सकते हैं। उनको वर्शिप करके धीरे धीरे क्या होगा, देवताओं की वर्शिप करने का क्या फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये हो गया कि व्यक्ति अथीस्ट के बजाय किसी अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हैं। आप बोलोगे ना फिर देवता का वर्शिप क्यों बनाया भगवान ने, जब अल्टीमेटली भगवान ही है, तो व्हाट इज़ द नीड और डेमीगॉड वर्शिप, है ना। हाँ, सो फर्स्ट इज जो लोग एकदम ग्रॉस इग्नोरेंस में उनके क्या कर रहे हैं, वो उनके अंदर एक श्रद्धा बेसिकली कुछ जगा रहे हैं, और जो लोग कोई भोग करना चाहते हैं उनके लिए इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है कि ये जो यज्ञ होते हैं, देवताओं की वर्शिप होती है, जैसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे देवताओं के लिए यज्ञ होते हैं, उन यज्ञ के अंदर एक शालिग्राम शिला रखा जाता है, वो यज्ञ पुरुष होता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु, वो यज्ञ पुरुष होता है। तो अल्टीमेटली जैसे यज्ञ तो इंद्र के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में यज्ञ पुरुष कौन है, शालिग्राम शिला है बेसिकली। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, कि मैं क्या हूँ, सभी यज्ञों का क्या हूँ, भोक्ता हूँ। आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल द यज्ञास, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो ये बेसिकली लॉर्ड कृष्णा इज लाइक एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। फिर लॉर्ड कृष्णा इट कम्स इन अवर स्क्रिप्चर्स आल्सो दैट एको नारायण, ऐसे हमारे उपनिषदों में आता है, अथर्ववेद में आता है ना। उसमें आता है कि यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम यो वेदाम च गोप्यति स्म कृष्णा। इट वॉज कृष्णा हु इन द बिगिनिंग इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज एंड हु डिसेंटेड वैदिक नॉलेज इन द पास्ट। अगेन इट कम्स इन नारायण उपनिषद, कहते हैं अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यता प्रजा सजेति। देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी नारायण डिजायर टू क्रिएट द लिविंग एंटिटीज, है ना। फिर उपनिषदों में आता है नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्र जायते, नारायणाद अष्टवसवो जायते, नारायणाद एकादश रुद्र जायते, नारायणाद द्वादश आदित्य। सृष्टि के शुरू में कौन थे, नारायण। सृष्टि के बाद में कौन रहेंगे, नारायण। बीच में क्या होती है, सृष्टि होती है। सृष्टि में बहुत सारी लिविंग एंटिटीज, बहुत सारे डेमिगॉड्स वो आते हैं यहाँ पर और क्या करते हैं, उनका अलग अलग पोस्ट होती है, वो सबको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और बहुत कुछ है इसके रेफरेंसेस के बारे में, डेमिगॉड्स के रेफरेंसेस के बारे में। तो जितने भी डेमिगॉड्स हैं वो सब क्या हैं, लिविंग एंटिटीज़ हैं, है ना। तो 3 तत्व होते हैं, लेकिन लॉर्ड शिव का जो पोजीशन है वो स्पेशल है ना। तो 3 तरीके के तत्व होते हैं, है ना। एक तो होता है विष्णु तत्व, एक होता है जीव तत्व। जितने भी तत्व हैं बेसिकली वो सब क्या है, हम सब क्या है, जितने भी देवता हैं वो सब क्या हैं, जीव तत्व हैं, है ना। सभी जीव अपने गुणों के आधार पर बेसिकली क्या कर सकते, देवता अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, इससे कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम, 9 चैप्टर में आया था, उसमें आया था कि हम जैसे पुण्य करते हैं तो हम ऊपर के लोकों में जाने स्टार्ट कर देते हैं, और ऊपर के लोगों में अगर कोई बहुत ज़्यादा भोग करता है तो कहाँ जाता है वो, छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। उसके पुण्य छीन हो जाता है तो नीचे के लोकों में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है बेसिकली। तो दैट इज अ पोजीशन। बट लॉर्ड शिवा इज स्पेशल, है ना। ही इज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। एंड इन फैक्ट इन दिस वर्ल्ड ही इज लाइक अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ही इज वेरी पावरफुल, है ना। तो व्हाट इज लॉर्ड शिवाज पोजीशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। सो यू कैन रिपीट अ श्लोक आफ्टर। निम्ना, ये श्रीमद् भागवत में आता है 12.13.16। निम्नगणाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इददम तथा। कहते हैं कि जैसे गंगाओं में क्या है, सभी नदियों में कौन श्रेष्ठ हैं, गंगा श्रेष्ठ हैं। जैसे सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है कौन सा पुराण, अमल पुराण। अमल पुराण मतलब क्या होता है, इसमें कोई मल नहीं। जैसे दूसरे जो पुराण हैं उनमें मल है। क्या मल है, भौतिक इच्छा के लिए,
बेसिकली आपको अगर ये करना है तो ये कीजिए, ये करना है तो ये प्राप्त करना है तो ये कीजिए, बेसिकली कुछ ना कुछ कैटव धर्म है। इसको कैटव धर्म बोलते हैं। डिजायर्स को फुलफिल करने वाला जो धर्म है वो क्या है? कैटव धर्म। क्योंकि डिजायर्स के बेसिस पर हम इसी भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। वी रिमेन रिपीटेड, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। अगर हम जितना डिजायर करेंगे, वो डिजायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, कुछ पुण्य कुछ पाप करने पड़ेंगे, इसी भौतिक जगत में कष्टों में बंधे रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो डिजायर्स हैं वो क्या है? दे आर द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज। तो कुछ, लेकिन श्रीमद् भागवतम इट टॉक्स अब ओनली अबाउट डिवोशन, इट डजंट टॉक अबाउट फुलफिलिंग द डिजायर्स। इसलिए जो भागवतम क्या है? अमल पुराण है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जी और नारद के बीच में, बेसिकली आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है। तो क्या होता है कि नारद मुनि, एक बार व्यासदेव जी होते हैं, उन्होंने चारों वेदों को कंपाइलेशन कर दिया होता है और इतिहास, रामायण इतिहास और महाभारत लिख चुके होते हैं। और इतना लिखने के बाद में भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं अपने हृदय के अंदर। तो उनकी शुद्धता देखकर वहाँ पर कौन प्रकट हो जाते हैं? नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि जब व्यासदेव से कहते हैं कि क्या हुआ, आपने तो इतना लोक कल्याण के लिए कार्य किया है, आपको इतनी उदासी क्यों हो रही है? तो कहते हैं आप तो परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, आप ही बताइए कि मेरे अंदर क्यों? मैं इतना अच्छा कार्य किया है, सारे वेद लिखे हैं, सारे पुराण लिखे हैं, सारे इतिहास लिखा है, लेकिन फिर भी मैं क्या नहीं हूँ? संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि आपने एक्सक्लूसिवली भगवान का गुणगान नहीं किया, है ना। और एक श्लोक बोलते हैं कि वो जो गुणगान है ना, कौए के तीर्थ के समान है जहाँ पर भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता है। वो जो लिटरेचर्स हैं, कौए के तीर्थ के समान है जहाँ भगवान का गुणगान नहीं किया। तब उन्होंने फिर क्या किया? इस श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो इस भागवतम का ये श्लोक है कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवतम श्रेष्ठ है, उसी तरीके से सभी वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है? शंभु इज द टॉप मोस्ट वैष्णव, मोस्ट एलिवेटेड वैष्णव, है ना। और एक और वो आता है कि 12 महाजन है ना। जैसे कहते हैं कि धर्म का जो ज्ञान है बहुत गूढ़ी है, उसको हम समझ नहीं सकते कि धर्म वास्तव में क्या है ना। कई बार शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी धर्म को नहीं समझ सकते। इट्स सो डेलिकेट, सो इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैटर, जस्ट लाइक E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। इट्स वेरी सटल टू अंडरस्टैंड। इसलिए भौतिक जगत का है, लेकिन उसको समझने के लिए इसमें धर्म के जो तत्व प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम ऐसे नहीं समझ सकते खाली यूट्यूब से और इन सब चीज़ों से। बेसिकली वेरी कॉन्फिडेंशियल, या स्क्रिप्चर्स पढ़ने से भी नहीं समझ सकते उनको समझने के लिए क्या है? वी नीड महाजन। हमें ग्रेट अथॉरिटीज चाहिए, उनके मार्ग को फॉलो करके क्या कर सकते हैं? हम वो धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझ सकते हैं। और हमारे शास्त्र में बताते हैं कि 12 महाजन हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम के 12 महाजन हैं। कौन कौन से? स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू मतलब कौन है? ब्रह्मा जी। नारद मतलब नारद मुनि। शंभु मतलब लॉर्ड शिवा। स्वयंभू नारद शंभु। कुमार 4 कुमार। कपिल देव। मनु और प्रहलाद महाराज। जनक महाराज। भीष्म देव। प्रहलाद जनक। बलि महाराज। बलि वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी। वयम मतलब यमराज बोल रहे हैं। ये श्लोक यमराज ने ये श्लोक बोला कि मैं 12 बेसिकली अथॉरिटी जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझ सकते हैं, तत्व को समझ सकते हैं। एक्चुअली सो कॉल्ड मोटी अंडरस्टैंडिंग तो किसी को भी हो जाती है, पान वाले को भी होती है ना। पान वाला भी आपको कुछ भक्ति के बारे में, कुछ भगवान के बारे में ज्ञान दे देगा, है ना, कुछ ना कुछ बोल देगा, कुछ श्लोक भी बोल सकता है। लेकिन तत्व की बात करें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो हो सकता है अच्छे ब्राह्मण भी ना बता पाए। उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको जान सकते हैं महाजनों को फॉलो करके, है ना। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट इज हिडन इन देयर हार्ट। सो लॉर्ड शिवा इज दैट महाजन, इज दैट ग्रेट अथॉरिटीज। देयर 4 संप्रदायज: ब्रह्म संप्रदाय,
रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय. So in that one संप्रदाय is रुद्र संप्रदाय. So Lord Shiva is आचार्य of that संप्रदाय basically, है ना. और then पद्म पुराण में आता है, लॉर्ड शिवा माता सती को कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरणे. लॉर्ड शिवा clearly speak here that he relishes chanting the names of Lord Rama, है ना. तो he is in meditation, constant meditation and chanting on the Lord Ram, है ना. और when Lord Krishna displayed his universal form, भगवान कृष्ण जब यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, तो 11वें भगवत गीता का श्लोक है 11.15. कैन यू ओपन? पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वां सता भूत विशेष संगान ब्रह्मान ईशं कमलासनस्थं ऋषिं स सर्वां उर्गां स दिव्यान्. Someone read the translation. Arjuna said, "My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all sages and divine servants." है ना. तो आगे जाके वो क्या करते हैं, है ना. और 22वां श्लोक भी है. रुद्रादित्य वसवोच ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पासा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे. All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishwadevas, the two Asris, the Marutas, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfect demigods are beholding you in wonder. है ना. तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंदर विराट रूप में दर्शन किए, तो सबको दर्शन, सारे देवताओं के दर्शन किए. अलग अलग देवता भगवान के शरीर में मौजूद थे, है ना. आगे जाके दे आर लुकिंग द वंडर, दे आर प्रेइंग विद द फोल्डेड हैंड्स, है ना. तो इट इज सेड दैट दीस डेमिगॉड, द देवतास आर लाइक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉर्ड. भगवान के अलग अलग पार्ट है ना. तो भगवान की जब वर्शिप करना हुआ मतलब क्या, सबकी वर्शिप करना हो, है ना. इफ यू वर्शिप Krishna, if you worship Vishnu, the same. If you worship him, then we are pleasing everyone. हम सबको क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, है ना. लोगों को लगता है कि मैं अगर इनकी सेवा करूँगा तो ये रुष्ट ना हो जाए, इनकी करूँगा तो ये रुष्ट ना हो जाए. लेकिन अगर भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, इनको तुष्ट करेंगे तो सब लोग तुष्ट हो जाएंगे, सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं. जैसे बताया जाता है, पेड़ की जड़ में अगर पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, टहनियों को भी पानी मिलता है, पत्तों को भी मिलता है, तने को भी मिलता है, सबको पानी मिलता है ना. तो इसी तरीके का एक संदर्भ आता है लॉर्ड शिवा का, है ना. तो लॉर्ड शिवा रुद्र, बेसिकली जनरली लॉर्ड शिव को क्या, कैसे लोग अप्रोच करते हैं, किस लिए अप्रोच करते हैं? हाँ, कुछ वरदान मांगने के लिए. सारे उल्टे लोग उन्हीं के पास जाते हैं, सबसे ज़्यादा असुर, क्योंकि वो आशुतोष हैं, वो केयर नहीं करते, वो दे देते हैं, है ना. सारे जो उल्टे सीधे लोग हैं उनके पास ही जाते हैं, है ना. कितने सारे असुर उनको अप्रोच करते हैं बेसिकली, है ना. असुर, भूत, पिशाच, है ना. तो वो किस लिए अप्रोच करते हैं, लॉर्ड शिव को किस लिए अप्रोच करते हैं? कुछ मांगने के लिए, है ना. जैसे विरकासुर था एक, सुना आपने नाम? विरकासुर था, वो बहुत तपस्या कर रहा था, भगवान शिव की आराधना कर रहा था. और कैसे आराधना कर रहा था, घोर तपस्या कर रहा था, अपने शरीर से काट काट के, है ना, शरीर का मांस काट काट के आहुति दे रहा था, ओम शिवाय नमः, इस तरीके का खूब, है ना. बाद में काटते काटते अपनी गर्दन को काटने वाला था, तो भगवान शिव वहाँ पर क्या हो गए, प्रकट हो गए. तो विरकासुर को बोला कि क्या चाहिए, मैं आपकी अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ.
तो वृकासुर कहता कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। कितना उल्टा आदमी है। आप समझ रहे हो किस लिए तपस्या कर रहे हैं? दूसरों को भस्म करने के लिए, है ना। जो टेढ़ी खोपड़ी के लोग होते हैं वो कुछ अचीव भी करते हैं, लेकिन किस लिए अचीव करते हैं? दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वायलेंस के लिए। बेसिक ये आसुरी बुद्धि है बेसिकली, है ना। लेकिन भगवान से वास्तव से उन्होंने कहा चलो ठीक है तथास्तु, अभी उनको बोल दिया। लेकिन वो बहुत ही अजीब व्यक्ति था। और उसकी क्या हुआ, उसको क्या लगा कि देखो शिव के पास में कौन है? सती माता पार्वती देवी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वरदान का इस्तेमाल इन्हीं के ऊपर करता हूँ, पार्वती को अपना बना लेता हूँ। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करने लगा? लॉर्ड शिव के पीछे भागने लगा, है ना। तो फिर भागते भागते गया। फिर बाद में जब, है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जब भी कष्ट होता है तो भगवान तो ही इज़ वेरी, दे आर वेरी डियर टू ईच अदर, है ना। कई बार भगवान अपने ज़्यादा दर्जा देते हैं भगवान शिव को। ये प्रेम का संबंध है। जैसे माता यशोदा को, है ना, या अर्जुन के भगवान क्या बन जाते हैं? सारथी बन जाते हैं। उसी तरीके से भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने भक्तों को एलिवेट करने के लिए कैवन को जाते। तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप लेके आते हैं और वहाँ पर घूमने लगते हैं। तो वृकासुर वहाँ पर मिलता है, उसकी तारीफ़ करते हैं, वृकासुर आप तो महान असुर हो, ये है वो है। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि अरे मुझे अभी वरदान मिला है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूँगा क्या हो जाएगा? वो भस्म हो जाएगा। कहते हैं अरे ये शिव जी के अभी वरदान में शक्ति वक्ति नहीं रही है। अभी दक्ष प्रजापति का पता है कितना शिव जी गुस्सा हुए थे, उनके वरदान में शक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है सही बोला होगा? तो डाउटफुल हो जाता है। पर ट्राई तो करो, है ना। ट्राई करके देखो, एक बार रखो अपने सिर पर हाथ रख के देखो शिव जी के वरदान में कोई शक्ति नहीं। और जैसे ही बोला तो वही राक्षस क्या हो गया? भस्म हो गया, है ना। तो ये जो जितने भी राक्षस होते हैं, किस लिए? रावण ने भी पूजा किसकी करी थी? शिव जी करी थी, हैं? हाँ, समझ रहे हो, ये राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। भगवान से भगवान की शक्ति छीनना चाहते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे रावण ने भी क्या किया था? हाँ, वो भी खूब उसने वर्शिप करी थी, लॉर्ड शिव की वर्शिप करी थी। तो वहाँ पर जब रावण का जब मृत्यु हो रही तो पार्वती माता बोलती है कि बचाओ आपका भक्त है। कहते मैं क्या करूँ, भगवान के सामने भिड़ रहा है ना। तो ये जितने भी असुर हैं बेसिकली ये वर्शिप करते हैं किस लिए? कुछ पाने के लिए। लेकिन वास्तव में जो सही भाव से लॉर्ड शिव की वर्शिप करते हैं तो भगवान शिव उनको क्या करते हैं? भगवान की भक्ति देते हैं। जैसे रुद्र, है ना, रुद्र गीत आता है, प्रचेतास को 10 प्रचेतास थे, है ना, श्रीमद् भागवतम 4.26 में, है ना। उसमें क्या होता है? ये 10 प्रचेतास होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वेरी गुड, है ना, वेरी कल्चर्ड स्टूडेंट्स। तो उनको क्या करते हैं? भगवान शिव मिलते हैं और भगवान शिव उनको क्या करते हैं? हरि नाम में उनको दीक्षा देते हैं, शिव जी, है ना। और फिर वो अपने जीवन को परफेक्ट करते हैं, वो जो प्रचेताज होते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि ये जो मैंने गीत दिया है, या आमिर भी या इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवत स्तवम अधियानो दुराराध्यम हरिम आराध्यति यसौ असौ। Although rendering devotional service to the Supreme Personality God and worshiping Him are very difficult, if one vibrates or simply reads this Shrota prayers composed and sung by me, he will very easily be able to invoke the mercy of Supreme Personality of Godhead, है ना, है ना। अगर कोई इस मंत्र को, मेरे दिया हुआ इस मंत्र है, इस मंत्र को अगर क्या करेगा? उच्चारण करेगा तो क्या करेगा? बहुत जल्दी से भगवान को प्रसन्न कर लेगा, है ना। तो एक और संदर्भ आता है सनातन गोस्वामी और भगवान शिव का, है ना। तो यहाँ पर चकलेश्वर महादेव है, आपने देखा होगा वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव आता है ना। तो चकलेश्वर महादेव वहाँ पे विराजमान है। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी, आप देख रहे हैं 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी।
तो ऐसे सनातन गोस्वामी सबसे एल्डेस्ट थे। तो सनातन गोस्वामी क्या करते, चकलेश्वर महादेव के पास में वहाँ पर भजन कर रहे होते हैं, हरि नाम ले रहे होते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनको कष्ट होता है थोड़ा सा, क्या, वहाँ पे मच्छर लगते हैं, है ना, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो वो एक दिन सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, है ना। तो ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी उनको स्वप्न में कौन आते हैं, भगवान शिव आते हैं। तो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। तो कहते हैं क्यों, कि नहीं मुझे आपका संग चाहिए, कि लेकिन मैं तो यहाँ से बहुत दिक्कत है, मैं अपना भजन नहीं कर पा रहा हूँ। कि आप चिंता मत करो, आपको आज के बाद कोई मच्छर यहाँ पर नहीं काटेगा, है ना। तो उस दिन के बाद वहाँ पर कोई बेसिकली सनातन गोस्वामी किसी मच्छर ने तंग नहीं किया। सनातन गोस्वामी वहीं पर है, आज भी जाएंगे तो आज भी वहाँ पर मच्छर नहीं, है ना। तो ये भगवान की विशेष लीला है ना। तो उनको क्या चाहिए होता है, वैष्णवों का संग चाहिए होता है ना। और इसमें जैसे भगवान की जो लीला होती है ना, ये रास लीला होती है ना। तो भगवान की जो रास लीला कहते हैं कि सबसे एसोटेरिक रस है, हाईएस्ट टॉप मोस्ट एक्सचेंज है मेलो का, है ना, डिवोशन का सबसे टॉप मोस्ट एक्सचेंज है क्या है, रास लीला, है ना। देखने में मंडेन लगता है, लड़की लड़कों का डांस लगता है, नो, इट इज़ डिवोशन, प्योर डिवोशन टू कृष्णा। सारी जो जीवात्मा है सब भगवान की शक्तियाँ हैं, है ना। नेचुरली दे आर मेंट टू सर्व कृष्णा, है ना। तो उनके बीच में जो रेसिप्रोकेशन है, जैसे हमारे जो रेसिप्रोकेशन होता है भगवान के साथ 5 रसों में होता है, पता है आपको। शांत रस में सेवा करते हैं भगवान की, कुछ लोग दास्य रस में सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी दास्य रस में भगवान की सेवा किए हैं, है ना। और सर्वेंट के मूड में, उसी तरीके से साख्य रस में भगवान की सेवा की जाती है। सेवा जब भी होती है उसमें कुछ एक्सचेंज होता है, कुछ रस आता है, कुछ टेस्ट आता है ना। साख्य रस में किसने सेवा की भगवान की, हैं, बलराम जी ने किया, और अर्जुन ने किया, और सुदामा ने किया। तो कौन से हो गए, जो गए थे मिट्टी लाने, क्या मिट्टी लाने, कृष्ण के अलावा कोई, मैं सबसे बड़ा मतलब मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचता है। हैं? तो ये कौन सा भाव में है, साख्य भाव में। फिर कौन सा भाव है, वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में मतलब भगवान तो सुप्रीम है, लेकिन फिर भी उनके फादर बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के साथ एक विशेष रस का उनको क्या होता है, आस्वादन होता है। जैसा भी जिससे फ्लेवर ही अलग अलग फ्लेवर्स है ना। एक्चुअल थिंग इज रिलेशनशिप विद कृष्णा, देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। कोई शांत भाव में भगवान को अप्रोच करता है, कोई दास्य भाव में अप्रोच करता है, कोई वात्सल्य भाव में, जैसे माता यशोदा और नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, ये सब कौन से भाव में, वात्सल्य भाव में भगवान के भक्त है ना, दशरथ महाराज, ये सब वात्सल्य भाव में भगवान के। और ऐसे ही माधुर्य भाव में गोपियाँ, लक्ष्मी माता, राधा रानी, सीता माता, ये सब कैसे वर्शिप करते हैं भगवान की, माधुर्य भाव में बेसिकली। तो जो रास लीला है वो माधुर्य भाव का टॉप मोस्ट भक्ति है ना। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट, लक्ष्मी देवी खुद पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी उस रासलीला में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तपोवन एक जगह है, तपोवन में लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, किस लिए, रासलीला में प्रवेश करने के लिए। हाँ, इसीलिए कृष्ण तत्व और विष्णु तत्व में थोड़ा सा अंतर है। उनकी वाइफ है, एक क्वेश्चन पूछा था कि उनकी वाइफ है लेकिन वाइफ को एंट्री नहीं मिली, गोपियों को एंट्री मिल गई, है ना। तो कृष्ण तत्व इज डिफरेंट। सो आज का डिस्कशन है वैसे बेसिकली अबाउट द देवतास एंड लॉर्ड शिवास पोजिशन। नेक्स्ट डिस्कशन विल डिस्कस अबाउट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, बोथ आर सेम, विष्णु तत्व एंड कृष्ण तत्व सेम, है ना, सेम विष्णु तत्व, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रसा। तो माता लक्ष्मी को भी एंट्री नहीं मिलती है, और लॉर्ड शिव को तो एंट्री, मेल एंट्री है नहीं वहाँ पर, तो लॉर्ड शिव को भी एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन भगवान शिव का बहुत मन होता है रासलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनको क्या बोलते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं, पहले आप क्या करो, गोपी बनो।
तो एक कुंड है, उस कुंड में उनको स्नान कराती है, फिर गोपी वेश लेते हैं, तब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। हैं? कुछ नाम था, नहीं गोपेश्वर नहीं, कुछ और नाम होता है उनका। तो उसमें तो तब फिर वो उसमें पार्टिसिपेट, तो दैट इज़ द पोजीशन ना। तो हमें बेसिकली ऊपर ऊपर से देखने में कुछ अलग लगता है, सभी देवता एक समान लगते हैं, सबकी पोजीशन एक लगती है, लेकिन हम शास्त्रों से देखें तो क्या है, भगवान की पोजीशन अलग है, देवताओं की पोजीशन अलग है बेसिकली। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं यान्ति देवव्रता, सॉरी कौन सा श्लोक था, 9.23, दोज persons who are, Prabhupada ji परपट में लिख रहे हैं कि persons who are engaged in the worship demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Lord Krishna says, for example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree, or pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge. है ना? तो अल्टीमेटली अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना तो डायरेक्टली भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि भगवान के भक्त की वर्शिप को महान बताया जाता है ना, लेकिन है ना, जैसे होता है कि कई बार शिव को भगवान बोला जाता है, लेकिन भगवान वो किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान है। जैसे कई बार गुरु को भगवान बोला जाता है, लेकिन गुरु क्यों भगवान है, क्योंकि हरि के प्रिय हैं। जैसे सुबह हम प्रार्थना गाते हैं तो कहते हैं साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। कि गुरु क्या है, साक्षात हरि हैं, लेकिन गुरु ऐसा क्यों हरि हैं, क्योंकि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या, क्योंकि भगवान हरि के क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। देयर आर ए वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विथ कृष्णा, है ना। तो इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, देन इफ यू प्लीज हिज डिवोटी, देन कृष्णा विल बी प्लीज्ड, है ना। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनके भक्तों को प्रसन्न करके बेसिकली। तो गुरु को प्रसन्न करके क्या कर सकते हैं हम, भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भगवान का बेसिकली भाव है कि उन्होंने अथॉरिटी अपने भक्तों को दे रखी है ना। लेकिन भक्तों को कैसे वर्शिप करना चाहिए, भगवान के संबंध में। इंडिपेंडेंटली गॉड नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट गॉड, दे आर द डिपेंडेंट गॉड, है ना। उसी तरीके से जैसे गुरु भगवान है, उसी तरीके से भगवान शिव भगवान है। दे इज नॉट इंडिपेंडेंट गॉड, ही इज डिपेंडेंट गॉड बेसिकली, है ना। उसमें आता है ब्रह्म संहिता में आता है कि जैसे दही है ना, हम जितने भी जीवात्मा हैं सब भगवान के एक्सपेंशन हैं, हम सब भगवान के एक्सपेंशन हैं। एक भगवान के स्वयं एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है विभिन्नांश, एक तो होते हैं स्वांश, एक होता है विभिन्नांश। स्वांश मतलब जितने विष्णु तत्व हैं वो भगवान के क्या हैं, स्वांश हैं, और जो जीवात्मा वो क्या है, विभिन्नांश हैं। तो वही भगवान बेसिकली क्या होते हैं, अपना विस्तार करते हैं भगवान शिव के रूप में। कब, जब उनको क्या होता है, इस भौतिक सृष्टि में के साथ में संपर्क करना होता है, क्योंकि लॉर्ड नारायण नॉट डजंट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, है ना। दैट्स हाउ ही कम एंड ही टेक्स द इंटरेक्शन दिस। इस तरीके से हम समझ सकते हैं भगवान शिव की क्या पोजीशन है, देवताओं की क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? जी भगवान शिव कौन से वो है एक्सपेंशन जो आपने भी दो बताए, उनके पुरुषावतार में आते हैं भगवान शिव, भगवान कृष्ण के पुरुषावतार में आते हैं। प्रभु जी आपने बोला था कि ना हमको अगर कॉन्फिडेंस नॉलेज चाहिए तो हम वो महाजन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो जितने आपने महाजन बताए थे वो तो भी है नहीं, तो फिर कैसे मतलब कॉन्फिडेंस नॉलेज है वो कैसे क्या करेंगे? गुड। सो ये जो महाजन से नॉलेज गेन कर सकते हैं, फिर महाजन है नहीं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स एक तो तरीका है, महाजनों की जो परंपरा है, महाजन अपनी परंपरा है, महाजनों की परंपरा जीवित है। जैसे ब्रह्मा जी महाजन है, उनकी परंपरा जीवित है ना। तो अगर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करना तो उनकी परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक परंपरा को एक महाजन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे 12 महाजन से किसी महाजन को सीखना है, पढ़ना है, उसके बारे में इन डेप्थ चाहिए, तो एक पर्टिकुलरली फॉलो करना पड़ेगा।
हाँ, एक तो परंपरा के माध्यम से उस महाजन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास थोड़ा सा शक्ति है तो महाजन की प्रेयर्स जो होती हैं, जैसे बहुत सारी प्रेयर्स हैं, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं या लॉर्ड शिवा की प्रेयर्स हैं, इन प्रेयर्स को पढ़ के हम समझ सकते हैं। अब भागवतम में देखो बहुत सारी प्रार्थना है, जितने भी कष्ट आते हैं धरती के ऊपर, जब भी कष्ट आते हैं तो सारे देवता किनको अप्रोच करते हैं? ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं, है ना। अथॉरिटी उनकी ब्रह्मा जी हैं, सभी देवताओं की अथॉरिटी कौन है? ब्रह्मा जी। फिर जब ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहाँ? श्वेत द्वीप जाते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनके गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी पोजीशन को बताते हैं, है ना। तो भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान जो विष्णु हैं क्या हैं? द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एंड एक भागवतम में श्लोक आता है, जन्मादि अस्यता अन्याद इतरतस्व अभिज्ञा अर्थेषु स्वराट, है ना। और उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि सबको, देवताओं को भी क्या कर लेती है? मोहित कर लेती है। ही इज सो पावरफुल, उनकी जो एनर्जी है इतनी स्ट्रांग है, किसी को भी कैप्टिवेट कर लेती है, हैं? हाँ, ही इज मदन मोहन, सबको मोहित कर लेते हैं अपनी शक्तियों को। उनकी शक्ति इतनी पावरफुल है, हम भी उन्हीं शक्ति के अंतर्गत हैं, अभी उनकी मोहिनी शक्ति के अंतर्गत हैं, हम मोहित हो रखे हैं, है ना। जैसे आप पढ़ते हो कृष्णा बुक में, किस किस को भगवान ने मोहित किया अपनी शक्ति से? कौन मोहित हो गया था भगवान से? इंद्र मोहित हो गए थे। इंद्र कब मोहित हुए थे? हाँ, वैसे भी भगवान जब आते हैं तो क्या होता है, इंद्र को लगता है कि यार ये छोटा सा बच्चा है ना। पहले इंद्र के लिए सारे लोग यज्ञ करते थे, है ना। तो भगवान ने नंद बाबा को कह के इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया। अभी तो उसको लगा कि यार ये छोटे से बच्चे कहने में आ गए, अच्छी खासी पूजा चल रही थी मेरी, हैं, पूजा रुकवा दी, क्या गोवर्धन की पूजा करवा रहे, है ना। तो उनको लगा कि इस छोटे बच्चे को मैं क्या करता हूँ, सबक सिखाता हूँ। फिर इंद्र ने कृष्ण को सबक सिखाया, कैसे? बारिश की। तो कृष्ण ने क्या कर लिया? अम्ब्रेला तान दिया। कौन सा अम्ब्रेला था? गोवर्धन। और इंद्र ने इतनी बारिश की, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं ना, तो सबसे टॉप मोस्ट जो क्लाउड्स हैं उन क्लाउड्स को भेजा कि तबाह कर दो ब्रज को पूरा, है ना। पूरी जान लगा दी इंद्र ने। लेकिन सभी क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे अम्ब्रेला के नीचे। सभी गाय, गोपी, ग्वाल बाल, दे वर हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि दिन में क्या होता था, गोपियों को कृष्ण को दर्शन नहीं मिलते थे, क्योंकि कृष्ण कहाँ चले जाते थे? गाय चराने चले जाते थे, गोपियाँ घर में होती थी। और रात में क्या होते थे? नंद बाबा के यहाँ पर सोने चले जाते थे, तो गोपियों को दर्शन नहीं होते थे। उसी तरीके से गायों को होता, दिन में केवल मिलता था भगवान का संग, रात को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे भगवान के सब लोग साथ थे, है ना। क्या बोलते हैं? टाउन हॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाउन हॉल था, है ना। तो दैट वाज अ गुड पार्टी। लेकिन बाद में इंद्र को लगा कि ये तो गड़बड़ कर दिया, मैं तो किसी पंगा ले लिया, गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। फिर आके इंद्र क्या करते हैं? इंद्र आते हैं और खुद आगे नहीं आते, इतना बड़ा अपराध किया, सुरभि को आगे करते, सुरभि गाय को आगे करते हैं। भगवान गायों को प्रेम करते हैं ना, इंद्र को देखेंगे तो उड़ा देंगे, है ना। तो इंद्र, ऑफकोर्स कृष्णा इज वेरी कंपैशनेट, है ना। और इंद्र को फिर भी स्वीकार करते हैं भगवान, गलती हो जाती है, हमसे भी कितनी गलती होती है, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं। कृष्णा नोज के, है ना, सब ऐसे ही हैं। तो फिर उनको भेजते हैं, सुरभि गाय को आगे भेजते हैं, सुरभि गाय से अभिषेक करती है, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर इंद्र आता है, फिर इंद्र अपनी प्रार्थना करता है, तब क्या होता है? मामला सेटल होता है। तो अभी भी क्या है, वहाँ पे सुरभि कुंड है, जहाँ पे भगवान इंद्र ने भगवान की अर्चना की थी, है ना। इसी तरीके से ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित हो जाते हैं? जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? भगवान ऐसे ही बिठा लेते हैं सभी ग्वाल बालों को पास में, और लंच टाइम में पार्टी कर रहे होते हैं, और एक टुकड़ा उठाते हैं, कुछ खाते हैं, दूसरे के मुंह में डालते हैं, और आधा बचा वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। एक दूसरा ग्वाल बाल होता है, वो क्या करता है? फूल लेता है, लो कृष्ण प्रसाद प्रसाद प्रसाद, उनके मुँह आँख बंद करो, तो उनके मुँह में फूल डाल देता है, तो फूल बना देता है। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी को लगता है कि यार ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो लोग ही, बच्चे भी लोग पागल बना रहे हैं इसको। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? फिर कहते हैं कि यार थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी को डर था, आई एम प्लेइंग विद द फायर, गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो इतने मोहित हो गए भगवान की उस लीला से कि उनको लगा कि कृष्ण क्या साधारण बच्चा है ना। फिर उन्होंने क्या किया?
सारी उनकी गाय ग्वाल बाल सबको उठा के साइड में कहीं पर रिजर्व कर दिया, है ना। अभी तो कृष्ण जब वापस आए तो देखा कि मेरी गाय ग्वाल बाल कुछ नहीं है। उनके ओके मैं अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा, ग्वाल बालों की माताओं को क्या जवाब दूंगा, कहाँ गए। तो कृष्ण फिर क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं गाय में, ग्वाल बालों में, और ऐसे ही जैसे लुक्स था वैसे ही अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे श्रेयस प्रभु जैसे ही बन जाते हैं, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही बोल चाल, वैसा ही बिहेवियर, वैसे ही हेयर स्टाइल, सब कुछ वैसे ही बन जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, घर चले जाते हैं तो माता शाम को बस स्वागत करती है बच्चे, चलो बच्चे आ गए, घर वापस आ गए, है ना, घर वापसी हो गई। उसके बाद में उनकी खूब और ज़्यादा प्रेम दिखाती है माताएं, उनको बहुत प्रेम करती हैं। फिर वो कहानी चलती रहती है। और एक दिन क्या होता है कि वो भगवान जब गाय चरा रहे होते हैं, भगवान जब छोटे होते हैं बछड़े चरा रहे होते हैं बेसिकली, तो बछड़े जब चरा रहे होते हैं तो भगवान नीचे बछड़े चरा रहे होते हैं, बछड़े अलग चढ़ते थे और गाय अलग चढ़ती थी। तो बछड़े नीचे चढ़ते थे गोवर्धन के, गाय ऊपर जाती थी बेसिकली। तो भगवान नीचे बछड़े चरा रहे थे, गाय ऊपर थी, ग्वाल बाल ऊपर, सॉरी जो बड़े गोप थे वो ऊपर थे और छोटे जो बच्चे थे भगवान के साथ वो नीचे थे, बछड़ों को चरा रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक अलग ही सा सीन होता है। गाय जब देखती है नीचे बछड़ों को चढ़ते हुए तो गायों को बहुत वात्सल्य फील होता है, बहुत प्रेम आता है बछड़ों के प्रति। तो वहीं से क्या करती है, गाय भागना स्टार्ट कर देती है। और कैसे भागती हैं, ऐसा कहा जाता है कि दुलत्ती लगा के भागती है वहाँ से। वो रोकने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर जो ग्वाल बाल होते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं रोक पाते और जाती हैं। और जाते ही ग्वाल बालों को, सॉरी उनको बछड़ों को जाके चाटने लगती हैं, उनको अपना दूध पिलाती हैं, आंसू बहाती हैं। और पीछे पीछे जो गोप होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। गोप फॉलो करते करते आते हैं तो उनको गाय को रोकना चाहिए था, बछड़े को रोकना चाहिए था, लेकिन बछड़े को नहीं रोकते। वो करते अपने अपने बच्चों को उठाते हैं, गोदी में उठा के और उनका आलिंगन करने लगते हैं और उनको चूमने लगते हैं। तो सब लोग तो इसमें लगे हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति था, ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। बलराम जी ये पूरा सीन देख रहे होते हैं कि यार ये तो कुछ अलग सा ही वात्सल्य है, इतना प्रेम तो भगवान के साथ ही हो सकता है ना, ये अनयूजुअल प्रेम है ना। तो फिर कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ क्या लीला है इसके पीछे। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, रिवील करते हैं, है ना। बाद में जब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं 1 साल हो गया, अब देखता हूँ कृष्ण क्या हाल है इस बच्चे का। तो देखते तो वहाँ पे तो जितने भी ग्वाल वाल हैं और सब हैं, सब वैसा कि वैसा। उन्होंने फिर वापस जाके देखते हैं, मैं रखा है नहीं, सब कुछ वहाँ पे भी वैसा ही है। फिर बाद में यहाँ पे आते तो मोहित हो जाते हैं। फिर मोहित होकर देखते हैं कि वो जितने भी ग्वाल बाल होते हैं, जितनी भी गाय होती हैं, सब चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। अभी तो उनकी हालत ख़राब होती है। फिर खूब प्रणाम करते हैं, खूब दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भागवत में खूब सारी प्रेयर्स हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भी क्या होते हैं, भगवान कृष्ण की माया से मोहित हो जाते हैं। इतनी शक्तिशाली भगवान की माया है। भगवान शिव भी एक बार मोहित हुए थे, लेकिन है ना, जैसे ये समुद्र मंथन की लीला हुई थी, है ना। समुद्र मंथन की लीला हुई थी तो भगवान ने क्या किया था, अमृत निकला था, तो उस अमृत को देवताओं को देने के लिए असुर छोड़ नहीं रहे थे अमृत को। तो भगवान मोहिनी का रूप लेते हैं, है ना, और असुरों को मोहित कर लेते हैं। किससे, अपने रूप से, है ना। और क्या कर देवताओं को क्या देते थे, अमृत दे देते, है ना। भगवान शिव वहाँ पर मौजूद नहीं थे। भगवान शिव जब भगवान की इस लीला का सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ, है ना। तो मोहिनी मूर्ति को, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि, विष्णु कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, चलता है ना, कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी। तो ऑफ कोर्स भगवान सोचते हैं कि बहिरंग लॉर्ड शिव इज़ वेरी हाई पोजीशन, ही कांट बी एल्यूर्ड बाय दिस मेंटल एनर्जी। पार्वती माता तो उनके साथ में रहती है, भौतिक प्रकृति उनके साथ में, उनको कौन इंचेंट कर सकता है ना। भौतिक प्रकृति उनको इंचेंट नहीं कर सकती। लेकिन ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्ण इज ऑल पावरफुल, सो ही डिस्प्ले हिज डिवाइन एनर्जी बिफोर हिम, है ना। एंड देन ही सीज, he takes a beautiful form of मोहिनी मूर्ति, and then Lord Krishna becomes enchanted by that, ना। देखते हैं फिर उनके पीछे भागते हैं और अपने पूरा परिवार होता है, फैमिली होती है ना, उनकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, सभी ऋषि होते हैं, उनके बीच में भागते भागते जाते हैं, है ना। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान शिव भी क्या हो जाते हैं, भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मोहियंती यत सूरया, कृष्ण इज सो पावरफुल की माया से क्या होता है, सभी देवता भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं,
है ना. सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो दिस तत्व वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना. इट्स नॉट सो ईजी केवल यूट्यूब की वीडियो देख के हम इस तत्व को समझ जाएंगे. तत्व इज हिडन इन द हार्ट ऑफ महाजन, in the heart of devotees. Basically you should try to understand, and then if we do so, then we'll able to focus on what we are doing. We'll get the conviction on what we are doing, है ना. ठीक है. ड्रामा इज रेडी. एनी क्वेश्चंस? एक है, दो है, दो है, एक एक दो तीन है. ठीक है. क्वेश्चन हम लेंगे ड्रामा के बाद में, ठीक है ना. छोटा सा ड्रामा देख लेते हैं. इधर आ जाए सब लोग, इधर आ जाए, ड्रामा उधर कर लेंगे.